students, how are you? Mariam Naqvi is here, and today I will give you introduction of small letters, okay, and also their sounds. I want to clear the concept why small letters and their sounds are very important. Mostly parents do not bother initial ages studies from 2.5 years to 7 years, but these years are really very important for your kids. How? Just imagine, एक बच्चे को लेटर्स की रिकग्नाइजेशन नहीं है. हाउ कुड ही और शी मेक वर्ड्स, एंड हाउ कुड ही और शी मेक सेंटेंसेस, एंड हाउ कुड ही और शी मेमोराइज द थिंग्स. इट्स रियली वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है और मुझे बताना भी चाहिए. अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लफ्ज़ों की पहचान नहीं होती, they couldn't recognize the word and they couldn't pronounce them very well. उन्हें सीनियर क्लासेस में जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टीच यू letters and their sounds, then we will make words with these letters, okay? I will tell you how we have to write it. Start from the second line. First of all, you have to give introduction to your kid कि how many lines are there. There are 4 lines. How many lines? 4 lines. Small letter और capital letter वो कहाँ से start हो रहा है आप बताते नहीं हैं. Now I will tell you which letter will start from which line. Okay, I will start from letter A. It is small a. I will keep my pencil on small second line. First, second, third and fourth. Second line. I will make semicircle. Start from the dot, make semicircle, go up, come straight down, make a loop. It will make small a. The letter name is A. The sound is A. Aeroplane, alligator, ant, astronaut, axe. It's the first sound of these words. Aeroplane, aeroplane, alligator, astronaut. I will start from the second line, make semicircle, go up, come down, make a loop, it will make apple. Now I will write B. Start from first line, come straight down, go up again, make semicircle, it will make B. Ball, bat, balloon, bin, basket. Start from the second line. We will join hero to hero. In these 2 lines, I will write K. Start from the dot, make semicircle, it will make K. Carrot, caterpillar, carrot cake, camel, crab. Now I will write D. Start from the second line. Start from the second line, make semicircle, go up, come down, make a loop. It will make D. I just want to clear one thing. मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको ब और ड, बी और डी लिखने में प्रॉब्लम होती है. अगर टीचर या पेरेंट्स स्टेप अच्छा ले लें, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, कम स्ट्रेट डाउन, गो अप, मेक अ सेमी सर्कल, इट विल मेक स्मॉल बी. And the other thing is, start from the second line, make semicircle, go up, come down, make a loop. It will make small d, means D. अगर आप उनकी फॉर्मेशन उनको अच्छी सिखाते हैं तो बच्चा प्रॉब्लम फील नहीं करेगा, उसको उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. 6-7 स्टैंडर्ड में आके भी बच्चे को नहीं पता चलता कि बी किसको कहते हैं और डी किसको कहते हैं. वो बी को डी और डी को बी लिखता है. अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? हम स्टार्ट में बताते ही नहीं, हम उन्हें गाइड नहीं करते हाउ वी हैव टू राइट ब एंड हाउ वी राइट हैव टू ड. स्मॉल बी कैसे लिखना है और स्मॉल डी, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं. एंड नाउ कम ऑन स्मॉल ई. स्टार्ट फ्रॉम द डॉट, मेक स्लीपिंग लाइन, गो अप, राउंड 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 एंड राउंड, मेक सेमी सर्कल, इट विल मेक elephant, envelope, engine. Now start from
It is first line, but we will not start from here. Come little bit down. Start from the dot. Go up. Make a cap. Come straight down. Stop. Makes a cut. Make sleeping line. It will make small f. The sound is it's G, small g. How I will write it? Start from second line, make semicircle, go up, come down, make a loop, it will make g. The letter name is G, the sound is g. G, g, grapes, g, g, glass, g, g, garden. Now I will come H. Start from first line, come straight down, go up again, jump and straight down. It will make small h. Hat, house. Now E. Start from second line, come straight down, put a dot on the top. It will make E. Igloo, insect, injection, engine. Today I again recorded this lecture. What is the reason behind it? So many points I have left in my previous lectures. I again started from zero. For those parents, for those students who couldn't write it, who couldn't recognize it, and who don't know about the phonics, about their sounds. And what is the purpose of sound? हम sound क्यों सिखाते हैं? Let me tell you. It is a, it is k, it is b. Now I will create a new word with it. K, a, b, cab. It's easy to make a word. These are letters and I have made new word with these letters. K, a, b, cab. Now next, look here. It's d. 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 Dad. Okay? What is this? What is this? A. D. Had. Question is this, I just want to ask. क्या कभी आपने बच्चे को फोर्स किया? क्या कभी आपने बच्चे को सिखाने की कोशिश की? हम ब्लेम कर देते हैं स्कूल्स पे, ट्यूटर पे, हम खुद पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके नहीं बैठते और हम डिफरेंट किस्म की गैजेट्स दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, PSPs, लैपटॉप्स एंड टैब्स हैंड ओवर कर देते हैं. आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस है कि बच्चे कार्टून्स में अपना पूरा डे स्पेंड कर देते हैं, गेम्स में डे स्पेंड कर देते हैं. ये व्हाई आर यू वेस्टिंग योर किड्स? यूज़ पॉजिटिव दीज थिंग्स. ठीक है, हर चीज़ का पॉजिटिव यूज़ भी होता है और नेगेटिव यूज़ भी होता है. आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि पॉजिटिव यूज़ करें. जब टाइम स्पेंड हो जाता है, गुजर जाता है, फिर पेरेंट्स वरीड अबाउट होते हैं. उन्हें मिस्टेक का पता ही नहीं चलता कि हमने गलती कहाँ पे की. स्कूल भी अच्छा था, ट्यूटर भी अच्छा था और माहौल भी अच्छा था. देन वेयर इज़ द मिस्टेक? मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बना, या मेरे बच्चे को मेमोराइजेशन में प्रॉब्लम कहाँ पे है? एक्चुअली इनिशियल एज में आप बच्चे को अगर बॉदर नहीं करते, चीज़ें नहीं सिखाते, लेटर्स की रिकग्नाइजेशन नहीं कराते, साउंड से इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, तो बच्चा एक दलदल में गिर जाता है. मैंने रिसेंटली एक बच्चे को मैंने ज्वाइन किया बिफोर 6 मंथ. वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड थी, उसकी बहुत ज़्यादा थॉट स्कैटर्ड थी. मैंने उस पर बहुत ज़्यादा होमवर्क किया, उसको स्टार्ट से सिखाया, हरूफ हजी की छोटी अशकाल, उनकी साउंड्स, लेटर्स की साउंड. फिर उसके लिए लफ्ज़ों को पहचानना आसान हो गया. हम बर्डनाइज कर देते हैं बच्चों को, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं और वो बच्चा सीख नहीं पाता. जो उसने सीखना होता है वो नहीं सीख पाता. हम डायरेक्शन नहीं देते, हम सोच नहीं देते. मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने बच्चों को पॉजिटिव ट्रैक दें, अपने बच्चों को टाइम खुद दें और अपने बच्चों के जिनके मोंटेसरी में हैं, प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप में है, प्लीज़ उनको फोनिक्स के साथ सारी रीडिंग्स करवाएं. मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में और रीडिंग्स अपने स्टूडेंट्स की अपलोड करूँगी, जो कि मेरा नर्सरी प्रेप का जो स्टूडेंट है वो 10 क्लास के जो बुक्स हैं उनको रीड आउट कर सकता है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, वो अंडरस्टैंड कर सकता है, वो मेमोराइज कर सकता है कि उसकी मैंने मेमोराइज
मेमोराइजेशन प्ले ग्रुप से अच्छी कर दी, उसको मैंने चीज़ों से मुतारिफ़ करा दिया, लेटर से अच्छी रिकग्नाइजेशन सिखा दी उसको। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो साथ साथ हम सीखेंगे। आज के लिए मैंने आपको सिखाया ए टू ई को, हाउ वी हैव टू राइट इट एंड हाउ वी कैन बिल्ड वर्ड्स विद देम। हम इनके साथ अल्फाज कैसे बना सकते हैं। जब बच्चे को साउंड्स की रिकग्नाइजेशन हो जाएगी, उसके लिए वर्ड बिल्डअप करना ईजी हो जाएगा। वर्ड अगर वो बिल्डअप करेगा, बनाएगा, उसके लिए सेंटेंसेस बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई स्टूडेंट्स। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें मेरी लाइफ में बहुत से स्टूडेंट्स आए हैं। स्टूडेंट्स ब्रिलियंट होते हैं, पेरेंट्स आके कहते हैं ये बच्चा करता नहीं है, ये कर नहीं सकता, फ़लाँ टीचर ने कह दिया ये तुम कुछ बन नहीं सकते। हम पेरेंट्स, हम टीचर्स, हम पेरेंट्स अपने बेबीज़ को खुद डिसहार्ट कर देते हैं। जब वो डिसहार्ट हो जाता है, वो कुछ करता ही नहीं, वो कहता है इट्स ओके, मैं इतनी एफर्ट करता हूँ। हमें प्रॉब्लम अंडरस्टैंड नहीं होती कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम हमारी बेस में होती है। तो मेरा ये चैनल बनाने का पर्पस भी उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को एलीट क्लास स्कूल में नहीं करवा सकते, जिनके घरों में अच्छे टीचर्स नहीं जा सकते, जो वरिड हैं, जो अच्छा पे नहीं कर सकते, उन्हें पे भी नहीं करना पड़ेगा और वो बहुत अच्छा अपने बच्चों को घर में बैठकर सिखा सकते हैं। ड्यू टू कोविड-19 इट्स रियली गुड, यू कैन से कि अपॉर्चुनिटी फॉर दैम कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी बेस बना सकते हैं। दे कैन गिव गुड टाइम। मदर्स आर वर्किंग वमेन जो हैं और मेन हैं, दे आर नॉट गोइंग टू देयर वर्क्स, दे कैन गिव पर्सनल टाइम टू देयर किड्स। ओके, अगर आपका बच्चा अप टू 5-6 भी है, मीन्स 5-6 क्लास भी है, अगर आप अभी भी उसको फोनिक्स में आवाज़ों के साथ रीडिंग करा देते हैं तो उसके लिए इट वुड बी वेरी ईजियर फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ टू लर्न द थिंग्स, टू मेमोराइज द थिंग्स। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।